Good evening, friends. I'm Greece Paliwal, and today we will discuss about Ernest Hemingway. I have brought 10 MCQs on Ernest Hemingway. Friends, first of all, we would like to know about Ernest Hemingway. Who was Ernest Hemingway? So, we have given here Hemingway word. Ernest means, friends, serious. First of all, we would like to know the other meaning of Ernest. But here is the name. When we talk about it other sense, earnest means serious. So first of all, we would know about Ernest Hemingway. He was born on 21 July 21 July 1899, and he died on 2 July 2 July 1961. Friends, we have common thing here, July, same month, so we can learn it by the help of this. We will have to pay attention on it. We have same month here, July, 21 July 1899 he was born, and on 2 July 1961 he died. Okay, and it will be called his lifespan. Okay, now we would like to talk about other facts. And friends, we know that he was American novelist and short story writer. Okay, and we can say, as we all know, that he was born on 1899 and died on 1961. So we can say he was the modern American novelist and short story writer. Modern means 20th century. Okay, 20th century American modern novelist and short story writer. Besides it, we would like to know some other facts. He was born in Illinois. He was born in Illinois. We can say he was born at Illinois in US, United States. So friends, now we will discuss MCQs. Friends, we have given first question here. What was the title of Hemingway's 1932 non-fiction work about the tradition and ceremony of Spanish bullfighting? So friends, we have given here 4 options. We have given 4 options. So friends, we know that the correct answer is Death in the Afternoon. What is the correct answer? Death in the Afternoon. Now we have given second question here, friends. You can see here, what is the name of Hemingway's favorite bar in Key West, Florida? What is the name of Hemingway's favorite बार इन की वेस्ट, फ्लोरिडा? तो फ्लोरिडा में जो हेमिंगवे का जो फेवरेट की बार था, सॉरी फेवरेट बार था जो, तो वो कौन सा था? यहाँ पे उसका नाम पूछ रहा है यहाँ पे. व्हाट इज़ द नेम? सो फ्रेंड्स, वी हैव गिवन 4 ऑप्शन हियर ऑल्सो. फर्स्ट ऑप्शन बिग जॉर्ज, सेकंड Fat George, third Old George, and fourth Sloppy George. So friends, the correct answer is Sloppy George. Sloppy George is the name of Hemingway's favorite bar in Key West, Florida. Next question, friend. Now, question number 3. Hemingway committed suicide.
हेमिंगवे कमिटेड सुसाइड एट द एज ऑफ 61. व्हाट टाइप ऑफ गन डिड ही यूज? तो कह रहा है हेमिंगवे ने सुसाइड किया यानी कि कब, कितने साल की उम्र में? एट द एज ऑफ 61 की एज में इन्होंने सुसाइड किया. तो व्हाट टाइप ऑफ गन डिड ही यूज? किस प्रकार की गन यानी कि बंदूक इन्होंने यूज की? सो फ्रेंड्स, ही यूज्ड what kind of gun, what type of gun did he use? We have given 4 options here also: automatic, second revolver, third rifle, fourth shotgun. So friends, we know that correct answer is shotgun. What is the correct answer? Shotgun. Friends, besides it, we have an interesting point here. Hemingway, when we talk about Hemingway's family, so I would like to tell here, Hemingway's father, brother and sister also died by committing suicide. हेमिंगवे ने तो सुसाइड किया, इसके साथ साथ अगर सुसाइड की बात करें तो इनकी फैमिली में कौन कौन से सदस्यों ने और भी सुसाइड किया? तो उनमें इनके पिताजी और इनके भाई और इनकी बहन ने भी क्या किया था? सुसाइड किया था. तो ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, ऐसा भी पूछा जा सकता है इनके अतिरिक्त कौन कौन से मेंबर ने इनकी फैमिली में सुसाइड किया था करके. सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव गिवन हियर, फोर्थ क्वेश्चन. हेमिंगवेज 1940 नोबेल for whom the bell toss is set during which war. तो जो हेमिंगवे का 1940 का जो नोवेल है for whom the bell tolls is set during which war, जो 1940 का नोवेल है वो कौन से वॉर पे क्या है? सेट है यानी कि आधारित है. तो इसमें फ्रेंड्स हमें ऑप्शन दिए गए हैं. वी हैव गिवन 4 ऑप्शन ऑल्सो: अमेरिकन सिविल वॉर, स्पेनिश अमेरिकन वॉर, स्पेनिश सिविल वॉर, वर्ल्ड वॉर 2. सो फ्रेंड्स, हियर करेक्ट आंसर इज स्पेनिश सिविल वॉर. करेक्ट आंसर क्या है फ्रेंड? स्पेनिश सिविल वॉर इज द करेक्ट आंसर. एंड फ्रेंड्स, बिसाइड्स इट वी नो दैट Ernest Hemingway took this title, for whom the bell toll, from John Donne's poem Meditation. Now next question we have given here, fifth question. Question number 5 we have given: in what year did Hemingway win the Nobel Prize in Literature? यानी कि कौन से साल हेमिंगवे ने नोबेल प्राइज जीता लिटरेचर में, साहित्य में कौन से वर्ष उन्हें कहने का मतलब है नोबेल प्राइज मिला. तो फ्रेंड्स, वी नो दैट द करेक्ट आंसर इज 1954. कब मिला उन्हें? 1954 में जो है नोबेल प्राइज मिला था इन्हें. Friends, move on to next question. Question number 6. After World War I, Hemingway took a job on which Canadian newspaper? After World War I यानी कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद हेमिंगवे ने जो जॉब करना प्रारंभ किया, which Canadian newspaper यानी कि कौन सा कनाडा का जो न्यूज़पेपर था उसके साथ यानी कि कार्य करना उन्होंने प्रारंभ किया. सो फ्रेंड्स, वी नो दैट वाज, friends, we have given here 4 answers: Toronto Clarion, Toronto Post, Toronto Star, Toronto Times. So friends, correct answer is Toronto Star. कौन सा कैनेडियन न्यूज़पेपर था? टोरंटो स्टार. तो इसमें फ्रेंड्स टोरंटो जो स्टार जो कैनेडियन न्यूज़पेपर था, इसमें इन्होंने कार्य करना स्टार्ट किया. कब से कब तक? बिटवीन 1920 एंड 1924. 1920 से बोल सकते हैं 1924 तक इन्होंने इसमें कार्य किया टोरंटो स्टार न्यूज़पेपर के साथ. अगला क्वेश्चन हमें दिया गया है फ्रेंड्स यहाँ पे 7th क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 7. पब्लिश्ड
in 1924. What is the title of Hemingway's first novel which was not a great success? अब जो 1924 में जो प्रकाशित हुआ उसका टाइटल पूछ रहा है, यहाँ पे शीर्षक पूछ रहा है. व्हाट इज़ द टाइटल ऑफ हेमिंगवेज फर्स्ट नोवेल. हेमिंगवे का जो पहला नोवेल भी था, उपन्यास भी था, विच वॉज नॉट अ ग्रेट सक्सेस, जिसे बोल सकते हैं कि ज़्यादा सफलता नहीं मिली. तो कौन सा था वो, हमें ऑप्शन यहाँ पे दिए गए फ्रेंड्स. वी हैव गिवन 4 ऑप्शंस. द torrents of autumn, the torrents of spring, the torrents of summer, the torrents of winter. So friend, correct answer is the torrents of spring. कौन सा है फ्रेंड करेक्ट आंसर? the torrents of spring जो है ये करेक्ट आंसर है. और इसका जो सबटाइटल है वो है अ रोमांटिक नोवेल इन ऑनर ऑफ द पासिंग ऑफ अ ग्रेट रेस. और रोमांटिक नोवेल or romantic novel in honor of the passing of a great race. passing of a great race तो फ्रेंड्स क्या था इसका सबटाइटल? अ रोमांटिक नोवेल इन ऑनर ऑफ द पासिंग ऑफ अ ग्रेट रेस जो था इसका सबटाइटल था. एंड इट वाज पब्लिश्ड इन 1924. कब पब्लिश्ड हुआ था? 1924 में. फ्रेंड्स, now we have 8th question. Question number 8. What is the name of the fisherman in the 1952 novella The Old Man and the Sea? The Old Man and the Sea जो था उसमें जो फिशरमैन था उसका क्या नाम था बोल रहा है. 1952 में जो नोवेला था तो उसमें जो फिशरमैन था फ्रेंड्स वो क्या था? सेंटियागो था. उसका नाम क्या था? सेंटियागो. Friends, we have given here 9th question. Hemingway served as a Red Cross ambulance driver during World War I. In which country was he wounded? हेमिंगवे ने सर्व किया यानी कि सेवा की एक रेड क्रॉस एम्बुलेंस ड्राइवर के रूप में ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 1, पहले विश्व युद्ध के दौरान. इन विच कंट्री वॉज ही वाउंडेड यानी कि कौन सा कंट्री था, कौन सी कंट्री थी जहाँ पे वो क्या हुआ था? घायल हुआ था, जख्मी हुआ था. तो फ्रेंड्स वो कंट्री कौन सी थी हमें पता है. तो वो कंट्री कौन सी थी? यहाँ पे हमें ऑप्शन दिए गए हैं. यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं हमें. ऑस्ट्रिया, फ्रांस, जर्मनी एंड इटली. सो फ्रेंड करेक्ट आंसर इज इटली. कहाँ पे घायल हुए थे वो? पहले विश्व युद्ध के दौरान जब वो एक एम्बुलेंस ड्राइवर के रूप में अपनी सेवा दे रहे थे तो इटली में. फ्रेंड्स, लास्ट क्वेश्चन वी हैव गिवन हियर. क्वेश्चन नंबर 10th. हेमिंगवे वॉज बोर्न इन 1899. कब जन्म हुआ था उनका? 1899 में हुआ था. और इन ओक पार्क, कहाँ पे हुआ था फ्रेंड? ओक पार्क इन यूएस स्टेट के ओक पार्क में उनका जन्म हुआ था 1899 में. सो फ्रेंड्स वो पूछ रहा है कि कौन सी जगह, इन विच यूएस के कौन से स्टेट में हुआ था. सो फ्रेंड्स वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट इट. तो कौन सा स्टेट था वो? इलिनोइस. कौन सा था? इलिनोइस में इनका जन्म हुआ था. सो फ्रेंड्स, आप मुझे उम्मीद है कि आपको इन क्वेश्चन से हेल्प मिलेगी अर्नेस्ट हेमिंगवे के बारे में जानने के लिए थोड़ा बहुत. सो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग.